ابھی آپ براہ راست لے چلتے ہیں. اس وقت ذخا اشرف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو میں کہا آپ سے ہم کر لیں. تو سب سے پہلے میں پی ایس ایل کے حوالے سے نائلہ بھٹی صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا. یہ لیگ کمشنر ہے ہماری پی ایس ایل کی, تو یہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں, بتاتے ہیں جی کیا کچھ کیا. تھینک یو. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جی اچھا دن تھا ہمارے پی سی بی کے لیے, پی ایس ایل فرینچائزیز کے لیے بھی اور پی سی بی کے لیے بھی. ہمارے ڈومیسٹک براڈ کاسٹ رائٹس کی سیل تھی فار دا نیکسٹ 2 ایئرس, پی ایس ایل 9 اور 10 کی, اور لائیو اسٹریمنگ اگین فار پی ایس ایل 9 اینڈ 10 فار دا پاکستان ٹیریٹری. ہم تھوڑا سا ڈرے شروع میں ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن تھوڑی ذرا تھی تشویشناک, بٹ وی ور ویری شیور کہ جو پی ایس ایل کا برانڈ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑی اچھی پرائس اپنے برانڈ کے لیے ویلیو نکال لے گا. سو اینڈ الحمدللہ وی گاٹ اے گریٹ پرائس. 4 بڈرز تھے, چاروں جو اسپورٹس چینلز ہیں انہوں نے بڈ کیا. جیو اسپورٹس نے, ہم ٹاور اسپورٹس نے جو کہ 10 اسپورٹس ہے, اور پی ٹی وی اسپورٹس اینڈ اے آر وائی اسپورٹس. اے آر وائی کی سب سے ہائیسٹ بڈ تھی آفٹر دا سیکنڈ راؤنڈ. پہلے راؤنڈ میں کم بڈز آئیں, پھر ہم نے ان کو دوبارہ موقع دیا. تو سیکنڈ راؤنڈ میں اے آر وائی نے بہت اچھی ماشاءاللہ بڈ کی. اٹ واز نیئرلی 47 to 48% مور دین دا لاسٹ ٹائم. سو وی ور ویری ہیپی ود دیٹ. اٹ واز این ایکسلنٹ بڈ. ہماری بڈ کمیٹی میں فرینچائز ممبرز بھی ہیں, اونرز بھی ہیں, وہ بھی پارٹ آف دا بڈ کمیٹی ہیں. اور کیونکہ یہ زیادہ تر پیسے انہیں کو ہی جاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی خوش تھے اس اماؤنٹ سے. سو دا فرینچائز اونرز ور ویری ہیپی. اس کے بعد نیکسٹ بڈ تھی ہماری لائیو اسٹریمنگ کی. لائیو اسٹریمنگ کی بڈ الحمدللہ بھی بہت اچھی گئی. اٹ واز اے نیو کمپنی. بڈنگ سب نے کی تھی, جتنے بھی جو ہیں پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, سب نے بڈ کی. کچھ کنسورشیم کے ساتھ آئے اور کچھ نے الگ بڈ کی. اس میں ولی ٹیکنالوجیز اسلام آباد بیسڈ ہیں, بٹ دبئی میں بھی ان کے آفیسز ہیں. اٹ واز اے نیو کمپنی اور انہوں نے بڑی اگریسو بڈ کی, اینڈ دے بڈ 113% مور دین دا لاسٹ بڈ سائیکل for the next 2 years, which was an amazing bid. So again, I think it was a wonderful achievement, and it goes to show that PSL as a brand kitna bad chuka hai aur kitna important hai, and why people would love to be associated with the brand. Thank you. تھینک یو جی. نائلہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سارا ایکسپلین کر دیا. اب ہمارا جو دوسرا تھا جو وزٹ ٹو آسٹریلیا, تو اس میں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح شروع ہوئی کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو ہم نے سارا یہ بتایا کہ کس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ آسٹریلیا کے ساتھ اگر کریں تو میں تو اس کا بہت حامی ہوں, کیونکہ اس سے پاکستان کی کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ہم نے ان کی خیر اس تجویز کو بھی لیا. پھر اپنے ذہن میں بھی ہمارا بھی تھا, اپنے پی سی بی میں جو اپنی ٹیم ہے ان کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے. اور جب انڈیا گئے, ہماری جو آئی سی سی کی میٹنگز تھیں, اس کی سائڈ میٹنگز میں جو کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا. ان کے جو سی ربرو ہیں ان کے ساتھ سلمان صاحب نے بڑا اچھا کیا. تو مل کے ہماری دونوں کی ایک ایسی کمبینیشن بن گئی کہ کرکٹ آسٹریلیا اور پی سی بی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہم نے موو کرنا شروع کیا. اور مقصد یہ تھا کہ کرکٹ آسٹریلیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو مل کے ہم کو ایسا فیوچر میں ایسا کریں جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہو, کرکٹ کی بہتری ہو, اور پاکستان کے جو کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں پلینگ کنڈیشنز کے ہوتے ہیں, تو ان کو ایشین میں تھا, ہمیں وہاں کا تھا. تو اس کو ہم نے کہا کہ لیٹس میٹ اٹ اینڈ سٹ ٹوگیدر اور اس پہ آپ کریں. تو کرکٹ آسٹریلیا کے جو چیئرمین ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے آرڈر میں ایک کھانا بھی کیا, ایک ڈنر کیا, اور ڈنر میں ہم بھی گئے, ہمارے ٹیم ڈائریکٹر حفیظ صاحب بھی تھے, تو ہم نے سلمان صاحب اور ہم بھی تھے. تو ہم نے ڈسکس کیا ان کے ساتھ, اور ہماری ان کے ساتھ
एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो उसके लिए जो तफसीलात है मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ सलमान साहब, अगर आप उस पर रोशनी डालें ज़रा। थैंक यू चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। चेयरमैन साहब ने बताया, मेरा ख्याल से थोड़ा सा मैं एक्सपैंड आपकी इजाज़त से करूँगा कि जो चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं ना क्रिकेट की दुनिया में सारे क्रिकेट बोर्ड, कुछ उन पे भी हमारी बातचीत चलती रहती है, हम जब मिलते भी हैं मीटिंग्स में आईसीसी के साथ भी, और रेगुलरली हमारा इंटरेक्शन भी होता है एक दूसरे के साथ, खा वो फ़ोन पे हो या जूम पे हो। तो एफटीपी के अंदर जो कैलेंडर है हमारा, उसके अंदर इतने ज़्यादा क्रिकेट हो गई हुई है, अब उसको कैसे मैनेज करना है। सीजन्स का इशू आता है कि जी विंटर्स में यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया में उनके विंटर्स में नहीं क्रिकेट हो पा रही, और भी मुल्क जिनके साथ ये चैलेंजेस आते हैं उनसे हम बातचीत रेगुलरली करते रहते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, वी आर थैंकफुल टू देम, उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, और ये पर्टिकुलर टूर के साथ हमने कुछ मीटिंग्स अटैच कर दी थी कि जो हम पहले डिस्कशंस कर रहे थे उनको फाइनलाइज करने की कोशिश की जाए। एक उसमें अब चूँकि पीएसएल की पहले बात हुई है, वो वाला नुक्ता पहले हैंडल कर लेते हैं कि एक तो अब ये बिज़ी कैलेंडर की वजह से लीगें भी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं, क्लैश आने शुरू हो गए हैं एक दूसरे के साथ। तो हमने बात ये की कि इन आवर पार्टनरशिप वन ऑफ द थिंग्स जो हम ज़रूरी समझते हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि दोनों लीगें आपस में फ्यूचर में क्लैश ना करें। शेड्यूलिंग के ऊपर हमने एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग की कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे टू इंश्योर के हमारे आपस में शेड्यूल पीएसएल और बीबीएल के क्लैश ना करें। दूसरा, प्लेयर अवेलेबिलिटी पे बात की। प्लेयरों के पास भी अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, इतनी ज़्यादा लीग्स हैं, इतनी ज़्यादा क्रिकेट है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, इंजरीज हो रही होती हैं। तो ये भी बात की कि किस तरह एक दूसरे के लिए बेहतर प्लेयर पूल ऑफ प्लेयर्स को अवेलेबल किया जाए, पीएसएल के लिए भी और बीबीएल के लिए भी और एनओसीज के लिए ज़रा एक दूसरे को फैसिलिटेट किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के ऊपर बहुत बात हुई कि किस तरह हम क्रिकेट को इकट्ठे मिल के अपनी वीकनेसेस जो हर बोर्ड की और हर क्रिकेट की हैं उसको ओवरकम कर सकें, किस तरह इकट्ठे काम करके स्ट्रेंथन कर सकें एक दूसरे को। उसमें हमारा ख्याल था कि एक तो मेन अंडर 19 शाहीन्स टीम और विमेन टीम, इनके टूर्स को ज़्यादा रेगुलर किया जाए। जी ज़रूर, थैंक यू। ये बात हुई कि किस तरह हम एडिशनल टूर्स कर सकते हैं एक दूसरे के ममालिक में, शाहीन्स के, अंडर 19 के और विमेन के, और किस तरह हम इसको एक एनुअल फीचर बना सकते हैं कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में हम उनको होस्ट कर सकें और वो हमें ऑस्ट्रेलिया में होस्ट कर सकें, ताकि वो एशियन कंडीशंस के अंदर एक्सपोजर ले सकें और हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर एक्सपोजर ले सकें, जो कि एक कमी रही है ओवर टाइम। आई थिंक ये हमने रियलाइज़ किया है, हमें फीडबैक भी यही आता रहा है फ्रॉम क्रिकेट टीम एंड द क्रिकेट मैनेजमेंट टीम के यहाँ के कंडीशंस के आदी नहीं हैं प्लेयर्स, और बड़े सालों बाद जाते हैं, कम मैचेस खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो हमने सोचा एक यंगर लेवल से, जूनियर लेवल से उनके दौरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ें, और कोशिश ये है कि इस तरह हम कोलैबोरेट करके मेन, विमेन और अंडर 19 टीम्स को एक दूसरे के ममालिक में ज़्यादा खिलाएं। इसके बारे में हमने भी एक्सप्लोर किया कि क्या किसी और मुल्क को भी इसमें हम ऐड कर सकें ताकि एक ट्राईलैटरल किस्म का अरेंजमेंट हो सके। उस पर अभी फर्दर डिस्कशंस हमारी जारी है, लेकिन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग दोनों बोर्ड्स की ये हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि एनुअल एक दूसरे को विज़िट करें हमारी ये 3 टीमें, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। जनरली ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस और आईसीसी के जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर कलेक्टिवली हम प्लान कर सकें कि किस तरह एड्रेस करना है चैलेंजेस को। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे बात हुई, क्यूरेटर्स की बात हुई। चेयरमैन का बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन था कि जी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी क्यूरेटर डिपार्टमेंट के अंदर, और ये भी ज़रूरत है कि जो रीसेंट अपडेट्स और टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ कर सकें। तो उसमें भी दे वर काइंड इनफ टू से कि जी हम आपके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो रन करेंगे और अपग्रेड और अपस्किल करेंगे आपके ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर्स को।
सो ये 3-4 अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जिसकी डिटेल्स अभी फ्लैश आउट होनी है और एक एग्रीमेंट भी साइन होगा एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज। और जनरली स्पीकिंग आई थिंक विमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस इस तरह भी रहा कि उनकी एफटीपी में थोड़े गैप ज़्यादा हैं, तो कहाँ कहाँ ऐसे मौके पॉसिबल हैं कि हम एक दूसरे को विज़िट करके खेल सकें और लर्न कर सकें एक दूसरे की कंडीशंस के अंदर और इस तरह अपने प्लेयर्स को अपस्केल कर सकें। तो ये हमारी जनरल कुछ एग्रीमेंट्स हुई हैं और जैसे जैसे डिटेल्स और फ्लैश आउट होंगी तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू। आई थिंक ये जो है ये एक पहली दफ़ा कोई इस तरह एक अपॉर्चुनिटी मिली है। इससे पहले तो कभी आज तक ना आ रही मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने या हमने कभी इस तरह इनिशिएटिव नहीं लिया। तो आई थिंक ये पीसीबी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमने लिया। फिर आप ये देखें कि वहाँ गए और हमारी हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन हमने जो उसके साथ जो फ्रेश टैलेंट भी हमने डाला, 4-5 प्लेयर्स थे हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई और उनको भी ओपनिंग मिली इंटरनेशनल जो ग्राउंड्स पे खेलने की, तो एक बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है। और इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है खाना होस्ट किया इन द ऑनर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और जो हम लोग सब गए थे उनकी मेहरबानी है। और उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम भी थी और पाकिस्तान के भी थे, और ये भी एक मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी है जो हुई, और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात थी जिसका हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने और उनके बोर्ड के चेयरमैन ने जो वहाँ पर तकरीरें की, वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन की लीडरशिप की और पाकिस्तान ओवरऑल दोस्ती की जो बातें की, वो दोनों बड़ी इनकरेजिंग थी। और क्योंकि हम जिधर भी जाते हैं हम तो अपने मुल्क के नुमाइंदे होते हैं, वी आर देयर टू। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हमारे ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसके साथ खुशगवार मामलात पर बात हुई। पाकिस्तान टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया अच्छा रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।